गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री क्लास में आपको स्वागत है। 11th क्लास के लेक्चर में हमारा टॉपिक है पीरियोडिसिटी। लास्ट क्लास में हमने देखा था एटॉमिक रेडियस। बेसिकली वी हैव डिफाइन दैट व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एटॉमिक रेडियस, हाउ कैन वी डिटरमाइन द एटॉमिक रेडियस, इन विच वी सीन दैट atomic radius can be calculated by the relative method because atom does not exist in free form. Mostly you can say that the atomic radius is denoted by the bond length. If any bond exists in any state, like as elemental state, molecular state, then we measure its bond length, and the half of bond length is just equal to the atomic radius. The bond length of various bonds are different, like as if the molecule is ionic in nature, is covalent in nature, metallic, or coordination, so in which we have seen that in covalent bond two atoms are overlapped with each other, they are closely packed with each other, there is minimum distance between two atoms, so the internuclear distance will be least. So we can say that the atomic radius is lowest in covalent bond because their sharing of electrons takes place, or a particular area where sharing occurs, that is called overlapping region. अदर वर्ड्स द मेटेलिक रेडियस देख चुके हैं अपन, लाइटली 5 मिनट के लिए रिव्यू देते हैं इसका। मेटेलिक रेडियस मीन्स है क्रिस्टल ऑफ मेटल इन विच मेटल इज कंबाइंड विद अदर मेटल्स, क्लोजली पैक्ड मेटल इन विच द कोऑर्डिनेशन नंबर इज 12, देन वी मेजर द एटॉमिक रेडियस। ओके, नेक्स्ट वन टू वॉल रेडियस गैसेस मॉलिक्यूल के लिए किया था। अब देखो फाइनली यहाँ से स्टार्ट करती हूँ। पीरियोडिक टेबल के अंदर हमने ये देखा था, व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जाने पर, या फिर आप बोल सकते हो ऑन मूविंग अलोंग द ग्रुप्स from group 1 2 3 4 5 to 18 group, on moving along the period or on moving from left to right, we notice that the number of shell becomes constant. While the in a constant cell the number of electron as well as the proton will be increases. Here the ratio of proton and electron will be constant, but we can say that in particular area the charge density increases, in which the electron are dispersed while the positively charge is concentrated in the nucleus. Due to increasing the sufficient number of protons, the nucleus becomes strong. We can say that effective nuclear charge increases, or Z effective increases. So they attract the electrons more effectively. Okay, they attract the electrons more effectively, so we can say that electrons are attracted effectively inside, so the size will be decreases in along the period or along the groups, or on moving from left to right. We can say that group 17th elements are smallest in size than the group first and second in respective period. बट इन ग्रुप 18 की अगर बात करोगे तो ग्रुप 18 में ऐसा कोई रूल फॉलो नहीं होता है, क्योंकि वो वन टू वॉल रेडियस को फॉलो करते हैं, उनका साइज़ काफ़ी सफिशिएंट बड़ा होता है। ग्रुप 18 आपको पढ़ना भी नहीं है, ठीक है ना, आपको 17 तक ही पढ़ना है, तो आपको एक ही डिसीजन रखना है, ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट द एटॉमिक साइज विल बी इंक्रीजेस। अदर वर्ड्स, फ्रॉम अप टू डाउन इन पीरियोडिक टेबल, ऑन मूविंग फ्रॉम अप टू डाउन, ये तो देख लिया। इन पीरियोडिक टेबल ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट द नंबर ऑफ शेल बिकम्स कांस्टेंट while the shell number while in a shell the electrons increases, or on increasing the number of electron there also increases the number of proton in same ratio. Due to this nucleus becomes more effective and attract the electrons more effectively inside. देख चुके हैं सारी बात। इसकी वजह से साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है, और इंक्रीजिंग साइज की वजह से हमने एक फिनोमिना देखा है, लाइक आपको अरेंज करना पड़े बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन को, तो आप क्या करोगे, इसी मैनर में अरेंज करोगे, लेफ्ट से राइट जाते टाइम आपका साइज क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा।
अदर कोई भी एग्जांपल अगर आपके पास आता है, जैसे ये आ गया सल्फर, फास्फोरस सल्फर क्लोरीन, तो आपने देखा है सबसे जो लेफ्ट साइड में आता है वो आता है फास्फोरस, देन सल्फर, देन क्लोरीन, तो सबसे छोटा क्लोरीन है और इसके बाद में क्या है ये। उसके बाद में देखो ऑन मूविंग फ्रॉम अप टू डाउन द नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेस, यस, ऊपर से नीचे जाएंगे तो शेल का नंबर इंक्रीज होगा, क्योंकि फर्स्ट पीरियड के अंदर 1s सेल है, दूसरे में 2s 3s 4s 5s, इस तरीके से 7s तक चलता है। तो ऊपर से नीचे जाने पर नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होगा और एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है, क्योंकि हर बार एक शेल इंक्रीज हो रहा है, तो सेल इंक्रीज होने के साथ में न्यूक्लियस से उनका डिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज होता जाएगा, और न्यूक्लियस से जितना डिस्टेंस इंक्रीज होगा न्यूक्लियस उतना ही लेस इफेक्टिवली उसको अट्रैक्ट करेगा, और लेस इफेक्टिवली अट्रैक्ट करने की वजह से उनके अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स लूजली बॉन्डेड रहेंगे, और लूजली बॉन्डेड रहने की वजह से उनका साइज़ क्या होता है, इंक्रीज होता जाएगा। तो आप नॉर्मली ऐसे बोल सकते हो, मूविंग फ्रॉम अप टू डाउन द एटॉमिक साइज विल बी इंक्रीजेस। ये आपने देखा है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। इसके अंदर देखो एक ये ध्यान रखो, 11th के बच्चे स्पेशली, मैं आपको ये साइज़ तो देख लो आप एक बार कि हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मुथ, अलोंग द पीरियड चल रहा है, तो साइज इंक्रीज होता जा रहा है। एक चीज़ और सामने आई है, नेट पे ये चल रहा है कि आरबीएससी का मतलब 10th का तो सिलेबस आ गया, उसके अंदर ऑलमोस्ट 40% सिलेबस जो है वो रिड्यूस हो गया है। रिड्यूस से मतलब है कि 40% सिलेबस को लेस कर दिया है और सिर्फ उसमें से 60% सिलेबस ही रीड करना है। तो 11th के स्टूडेंट्स को मैं ये बता दूँ कि अपने बेसिक चैप्टर पढ़ें। अभी तक ऐसा कोई इसेंशियल वाला चैप्टर नहीं पढ़ा जो आपके रिमूव हो जाए, क्योंकि एटॉमिक स्ट्रक्चर है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर ये इस बार नहीं हो पाया तो 12th के अंदर जो आपकी न्यूक्लियर फिजिक्स चलती है उसको आप नहीं कर पाते हो, है ना। तो बेसिक चैप्टर उठाने की कोशिश करिए। मैंने जैसे ऑर्गेनिक के चैप्टर होते हैं 2 हैं, उनमें से एक रिमूव भी हो जाए, तो इस तरीके के चैप्टर नहीं उठाए मैंने। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ होती है, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री होती है, इसके अलावा और भी हैं आप लोगों की, जैसे सरफेस वाला है, रेडॉक्स है, ऐसा कुछ है, पी ब्लॉक है, इस तरीके के चैप्टर्स, तो उनको नहीं उठाया। बहुत बार ऐसे हो जाए कि हमने पढ़ लिया, वो अगर रिड्यूस हो गया तो क्या करेंगे, नहीं, इतना नहीं है। आप लोगों के बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल चैप्टर हैं। पीरियोडिक टेबल अगर इनमें से रिप्लेस भी होता है तो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक या हाइड्रोजन के चांसेस रहते हैं। पीरियोडिसिटी वाला चैप्टर रिप्लेस नहीं हो सकता है। केमिकल बॉन्डिंग जो है वो आप लोगों की सबसे मेन केमिस्ट्री है, उसके बिना तो आपकी इनऑर्गेनिक हो ही नहीं पाती है। तो ये चैप्टर्स आप लोगों के रिमूव नहीं होंगे। जो रिमूव होने वाले से लग रहे थे वो चैप्टर मैंने नहीं छोड़े, तो आप ज़्यादा कुछ नहीं सोचें, क्योंकि 11th के बच्चे कई बार ऐसे पूछते रहते हैं व्हाट्सएप पे भी फ़ोन कर सॉरी मैसेज करके, मैम आप जो पढ़ा रहे हो वो कहीं रिमूव हो गया तो क्या करेंगे। नहीं, एटलीस्ट आप उसको पढ़ें, पढ़ा हुआ कहीं नहीं जाएगा। और इतने ही चैप्टर पढ़े 11th में, तो हमने 3 या 4, तो उसमें से आपका कुछ लॉस नहीं होना है मेरे हिसाब से। 12th का देखेंगे, 12th वालों को मैं खुद गाइड करती हूँ, ठीक है। अब 11th के बच्चे इसका ध्यान रखें। एटॉमिक, अब देखो आज अपन देख रहे हैं फैक्टर अफेक्टिंग द एटॉमिक रेडियस। इसके अंदर ये आती है कि कौन कौन से फैक्टर होंगे जो एटॉमिक रेडियस को इफ़ेक्ट करेंगे या कंट्रोल करेंगे, या फिर कोई भी फैक्टर आ जाए तो उसको किस तरीके से मतलब एक्सप्लेन करके हम एटॉमिक रेडियस का ही प्रूव कर सकते हैं कि एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। तो फर्स्ट आएगा नंबर ऑफ शेल। देखो नंबर ऑफ शेल की बात ये है कि मेरे पास ये एक एटम है, इसके बाहर की तरफ मेरे पास एक ही शेल है, फिर मैंने शेल दूसरा बढ़ाया, फिर तीसरा बढ़ाया, फिर चौथा बढ़ाया। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल बढ़ेंगे तो ऑब्वियसली साइज इंक्रीज होगा। तो ऑन इंक्रीजिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसका मतलब नंबर ऑफ शेल अगर इंक्रीज हो रहे हैं तो एटॉमिक साइज भी क्या होगा, इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है ना। तो हम बोल सकते हैं एटॉमिक साइज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ शेल, मीन्स ऑन इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ शेल एटॉमिक साइज विल बी इंक्रीजेस, ठीक है। और ये फैक्टर कहाँ लगता है, लेफ्ट टू राइट जाने पर तो क्या होती है, शेल कांस्टेंट रहता है तो साइज बढ़ने का बनता ही नहीं है। अप टू डाउन जाएंगे तो क्या होती है,
नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो रहे हैं और नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होंगे तो एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है। यही फैक्टर अपन ने खुद ने देखा है। दूसरा देखो, पहला फैक्टर हो चुका है। दूसरा जो देख रहे हैं अपन, वो देख रहे हैं एटॉमिक साइज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, इसको आपकी बुक की लैंग्वेज के अंदर इसको जेड इफेक्टिव से शो किया है, ZEF, ठीक है ना। जेड इफेक्टिव का मतलब होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मतलब ये होता है कि न्यूक्लियस कितना स्ट्रॉन्ग है ना। जेड इफेक्टिव का मतलब है न्यूक्लियस कितना स्ट्रॉन्ग है। तो जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियस होगा वो इलेक्ट्रॉन्स को उतना ही स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर पाएगा, है ना। और जितना स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर पाएगा इलेक्ट्रॉन्स को, एटम की साइज़ उतनी क्या होती जाएगी, डिक्रीज़ होती जाएगी। तो हम ये बोल सकते हैं कि जितनी भी ये होते हैं एलिमेंट्स होते हैं, उन एलिमेंट्स के अंदर अगर हमारे पास में इफ़ द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, हम बोल सकते हैं इफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस देन इट अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स मोर इफेक्टिवली और साइज विल बी डिक्रीजेस। यही है ना। हमने ये देखा है ऑन मूविंग फ्रॉम अप टू डाउन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीजेस बिकॉज on increasing the number of shell, distance from the nucleus decreases, so it does not attract effectively electrons towards itself, so electrons are loosely bonded। साइज़ काफ़ी बढ़ जाता है, बढ़े हुए साइज़ के अंदर न्यूक्लियस इतना इफेक्टिव नहीं रह पाता है। इस वजह से डिस्टेंस इंक्रीज जो हो रही है उसकी वजह से क्या होगा, न्यूक्लियस इफेक्टिव नहीं रहता, और नहीं रहता है तो इलेक्ट्रॉन्स क्या रहेंगे, लूजली बॉन्डेड रहेंगे। बट from left to right the number of shell constant, so in a particular size charge density increases, so effective nuclear charge becomes more stronger, so it attract the electrons more effectively inside, due to this the atomic size will be decreases। बोल सकते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो साइज़ क्यों बढ़ेगी, क्योंकि वो मोर इफेक्टिवली उसको अंदर की तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और अट्रैक्ट करेगा तो साइज़ क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। थर्ड फैक्टर है एटॉमिक साइज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शील्डिंग इफेक्ट। बिल्कुल नया नाम है शील्डिंग इफेक्ट। क्या होता है वो सुनो। शील्डिंग इफेक्ट के अंदर आप ये बोल सकते हो कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर क्या होती है, हमेशा इलेक्ट्रॉन n-1d ऑर्बिटल में जाता है। n-1d ऑर्बिटल के में जाने से क्या होगा, पहले इलेक्ट्रॉन ns ऑर्बिटल में भरे जाते हैं। एक बार गौर से देखना इस चीज़ को आप। मेरे पास ये है, ठीक है, मैं इसको कह रही हूँ ये ns शेल है और ये n-1d शेल है। पहले इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरे गए, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे क्या होगा, जब डी ब्लॉक आता है तो उसमें पहला इलेक्ट्रॉन आएगा, उसके बाद में दूसरा, तीसरा, चौथा, 5, इस तरीके से 10 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो जब इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे, तो जब इसमें 1 इलेक्ट्रॉन आए तो न्यूक्लियस का पूरा कंट्रोल आएगा, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर पाएगा। लेकिन जैसे जैसे डी के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बढ़ता है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो on increasing the number of electron in n-1d ऑर्बिटल, एक इलेक्ट्रॉन लेयर बिकम्स, और या फिर आप बोल सकते हो ए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिकम्स ns एंड न्यूक्लियस। ns और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में और न्यूक्लियस के बीच में एक इलेक्ट्रॉन की लेयर बन जाती है। ड्यू टू दिस न्यूक्लियस कांट अट्रैक्ट द ns इलेक्ट्रॉन इनसाइड। इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर नहीं कर पाता, अंदर की तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाता। ये जो लेयर है ना, ये लेयर न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन्स को बचाती है, इसलिए इसको अपन बोलते हैं शील्ड की तरह काम कर रही है, लेयर की तरह काम कर रही है, तो इसको अपन बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट। एक ही लाइन में अगर बोलना चाहोगे शील्डिंग इफेक्ट तो आप बोल सकते हो प्रोटेक्शन ऑफ ns इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस बाय द n-1d ऑर्बिटल, कि ns इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस के इफेक्ट से बचाना क्या होता है, शील्डिंग इफेक्ट होता है। तो आप इसको क्या कैसे लिख सकते हो कि शील्डिंग इफेक्ट जितना ज़्यादा होगा तो ये लेयर उतनी ही डेंस होगी, और ये शील्डिंग इफेक्ट जितना ज़्यादा होगा तो न्यूक्लियस का बाहर वाले इलेक्ट्रॉन से कोई रिलेशन नहीं रहेगा। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन फैल जाएंगे, एक्सटेंड हो जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन फ्रीली एडेड रहेंगे, इसका मतलब लूजली बॉन्डेड होंगे। तो शील्डिंग इफेक्ट जितना ज़्यादा होगा
बाहर वाले इलेक्ट्रॉन उतने ही न्यूक्लियस से फ्री होंगे, और न्यूक्लियस से फ्री होती है इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एक्सटेंड होता है, बाहर की तरफ फैलता है, और एटॉम का साइज क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। तो आप क्या समझेंगे, शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होगा तो एटॉमिक साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट इट प्रोटेक्ट्स द एनएस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस, और शील्डिंग इफेक्ट हाई होगा तो साइज फैल जाएगा इसका। समझ आई बात? अलग से आता है शील्डिंग इफेक्ट, तब इसकी डेफिनेशन लिखाऊंगी, लेकिन यहाँ पे ये रिलेशन याद रहना चाहिए आपको। प्रोटेक्शन ऑफ एनएस इलेक्ट्रॉन बाय द n-1d इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस। नेक्स्ट आती है आयनिक रेडियस। रेडियस ऑफ ए आयन इज आयनिक रेडियस। आयन दो तरह के होते हैं, एक प्लस दूसरा माइनस। जब भी किसी एटम से पॉजिटिव आयन बनता है वो इलेक्ट्रॉन रिमूव करता है। न्यूट्रल एटम में जितने इलेक्ट्रॉन थे उतने ही क्या है, प्रोटॉन्स प्रेजेंट है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का नंबर क्या है, सेम है। बट n से n प्लस बनने पर इलेक्ट्रॉन्स का नंबर कम हो गया, प्रोटॉन का नंबर कितना है, उतना का उतना ही रहा है। इसका मतलब प्रोटॉन इंक्रीज हो गए किसकी बजाय, इलेक्ट्रॉन की बजाय। तो क्या होगा, प्रोटॉन का नंबर ज़्यादा होगा तो न्यूक्लियस क्या होगा, मोर स्ट्रॉन्गर हो जाएगा, और पहले की बजाय ज़्यादा इफेक्टिवली अट्रैक्ट करेगा तो साइज क्या होगा, कम हो जाएगा। In a cation formed by the loss of electron or more electrons from the neutral or gaseous atom due to higher number of protons, nucleus becomes more strong, यही बात बोली मैंने, and attract the electrons more effectively, और इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, ज़्यादा इफेक्टिवली अट्रैक्ट करेगा बजाय न्यूट्रल एटम के। सो द साइज बिकम्स स्मॉलर, इसकी वजह से साइज छोटा होगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द वेरिएशन ऑफ साइज इन केटाइन फ्रॉम द एटम, तो आप हमेशा लिखोगे ए केटाइन इज स्मॉलर देन इट्स रेस्पेक्टिव एटम, कि हमेशा केटाइन अपने रेस्पेक्टिव एटम से छोटा होता है, बिकॉज केटाइन इज फॉर्म बाय द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यू टू दिस the number of protons increases in nucleus and nucleus becomes more stronger, so it attract the more effectively electrons towards itself, so the size will be decreases। ध्यान रखोगे Na और Na प्लस पूछा है तो हमेशा Na प्लस की साइज छोटी होगी किससे, Na से। ऑन इंक्रीजिंग द चार्ज ऑन केटाइन साइज विल बी डिक्रीजेज, जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा इलेक्ट्रॉन्स की कमी उतनी ज़्यादा होती जाएगी, और इलेक्ट्रॉन्स की कमी उतनी ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स की कमी उतनी ज़्यादा होने से न्यूक्लियस इफेक्टिव, और न्यूक्लियस इफेक्टिव होने से साइज उतना ही कम। तो आप ये लिखोगे चार्ज डेंसिटी, ऑन इंक्रीजिंग द चार्ज डेंसिटी एटॉमिक साइज विल बी डिक्रीजेस। चार्ज डेंसिटी ज़्यादा तो न्यूक्लियस स्ट्रॉन्ग, और न्यूक्लियस स्ट्रॉन्ग तो साइज क्या होगा, कम होता जाएगा। जैसे Na प्लस है, Mg+2 है ना, तो जितना ज़्यादा चार्ज है उतनी साइज छोटी है। पॉजिटिव चार्ज पे साइज बढ़ेगा तो साइज छोटी होती जाएगी। एनायन या निगेटिव आयन इज फॉर्म्ड व्हेन ए न्यूट्रल एटम गेन वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स, की इलेक्ट्रॉन गेन करने पर एनायन का फॉर्मेशन होता है, और इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बढ़ेगा तो न्यूक्लियस जितना इलेक्ट्रॉन्स को पहले अट्रैक्ट कर पा रहा था, अब इलेक्ट्रॉन्स की नंबर ज़्यादा होने की वजह से न्यूक्लियस का कंट्रोल सब इलेक्ट्रॉन पे उतना नहीं रह पाएगा। सो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आने पर न्यूक्लियस क्या हो जाएगा, लेस इफेक्टिव हो जाएगा, और लेस इफेक्टिव होगा तो वो इलेक्ट्रॉन्स क्या रहेंगे, लूजली बॉन्डेड। सो अपन बोल सकते हैं निगेटिव आयन का साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है, बड़ा होता है। Cl से Cl माइनस बनेगा। Cl में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के नंबर सेम थे, लेकिन Cl माइनस में इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ गया। पहले से 17 प्रोटॉन 17 इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल कर रहे थे, लेकिन अब 17 प्रोटॉन्स को 18 इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल करना है। तो पहले की बजाय जो अट्रैक्शन है वो क्या हो जाएगा, कम, क्योंकि पहले एक 1:1 था, अब 1 से रेशियो क्या हो गया, थोड़ा सा इंक्रीज हो गया है। तो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर इंक्रीज होने की वजह से लेस इफेक्टिव हो जाए। सो अगर चार्ज पूछे तो Cl माइनस का Cl माइनस का साइज क्या होता है, बड़ा होता है, किससे, Cl से। अब अपने पास बात ये आई है कि एक रेस्पेक्टिव एटम जो होगा उससे हमेशा छोटा होता है उसका केटाइन, और उससे हमेशा बड़ा होगा उसका एनायन। जैसे जैसे चार्ज डेंसिटी बढ़ेगी तो साइज इंक्रीज होता जाएगा। निगेटिव आयन का साइज बढ़ता है, पॉजिटिव आयन में चार्ज डेंसिटी बढ़ने से साइज कम होता है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज़ के अंदर क्या करोगे, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज़ के अंदर क्या करते हैं कि हमको अगर अरेंज करना पड़े तो ये होता है मैनर, एनायन सबसे बड़ा यानी निगेटिव चार्ज वालों को सबसे पहले, फिर न्यूट्रल एटम को, उसके बाद में पॉजिटिव।
निगेटिव वालों के अंदर भी जितना ज़्यादा चार्ज है उसको सबसे आगे, उसके बाद में न्यूट्रल एटम, फिर पॉजिटिव में जितना चार्ज बढ़ेगा उनको सबसे पीछे की तरफ रखते जाएंगे। इसके बाद मैंने एक एग्जांपल शेयर किया है, ठीक है ना। इस कॉन्सेप्ट को मैं अगले वीडियो के अंदर बताती हूँ। आज के कॉन्सेप्ट में इतना ही। तब तक के लिए थैंक्स। हैव ए नाइस डे गाइस।